હવે અત્યારે આપણી સાથે ચેન્નાઈથી વિજયભાઈ જોડાયા છે। કુનકુન પારમાર્થિક ટ્રસ્ટ દ્વારા આ એક તાડપત્રનું જે ઘણા વર્ષો પહેલા આચાર્ય દેવો લખી ગયા છે એને અત્યારની ભાષામાં કેવી રીતે ટ્રાન્સલેટ કરવું તેની ખૂબ જ મહેનત કરીને એક એ લોકોની એક યુનિટ છે ત્યાં જે કન્ટિન્યુઅસ કામ કરે છે રિસર્ચ પર, તેની થોડીક માહિતી અત્યારે પારસભાઈ મહેતા આપશે અને ત્યારબાદ વિજયભાઈ આપણી સાથે 1 કલાકનું અહીંયા પ્રેઝન્ટેશન બતાવશે જેમાં આપણે સમજશું કે કઈ રીતની કાર્યવાહી ત્યાં ચાલે છે। આવતીકાલે અહીંયા એક્ઝિબિશન રાખવામાં આવ્યું છે, તાડપત્ર છોકરાઓ હાથમાં લઈને એને ફીલ કરી શકશે એ રીતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। તો અત્યારે ખાસ બધાને નમ્ર વિનંતી 1 કલાક શાંતિથી આપણે વિજયભાઈને સાંભળવાના છે। તે પહેલા પારસભાઈ મહેતાની થોડી વિશેષ માહિતી આપશે। જય જિનેન્દ્ર। આજનો આ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં તાડપત્રની માહિતી આપતો કાર્યક્રમ રજૂ કરતા પહેલા 2 મિનિટ હું વિજયભાઈ વિશે કહીશ। તેઓ અમદાવાદથી છે અને છેલ્લા 4 વર્ષથી તેઓ પોન્નુરમાં જે આચાર્ય કુનકુન જૈન સંસ્કૃતિ સેન્ટર કે જે કુનકુન કાહન પારમાર્થિક ટ્રસ્ટ દ્વારા સંચાલિત છે એમની સાથે જોડાયેલા છે। તેઓ મૂળ અમદાવાદના છે અને આજે પણ સવારથી તેમણે જે અહીંયા આપણે સ્પેશિયલ મંડપ બંધાવેલો છે જેમાં તાડપત્ર વિશે ઘણી માહિતીઓ તેમણે આજે આપી છે અને આજે આખા દિવસમાં લગભગ 120 મુમુક્ષુએ તેનું નિહાળ્યું છે અને તેના વિશે ઘણા પ્રશ્ન ઉત્તરનું તેમણે સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે। આ જે પ્રેઝન્ટેશન છે, આ જે મંડપ છે તાડપત્રનો, એ માત્ર કાલના 1 દિવસ માટે જ છે। તો મારી બધાને નમ્ર વિનંતી છે કે આજના પ્રેઝન્ટેશન પછી તમને બધાને ઘણા પ્રશ્નો ઉપજશે, એ બધાનું સ્પષ્ટીકરણ કાલે આખા દિવસમાં વિજયભાઈ ત્યાં મંડપમાં રહેશે। તો દરેકે દરેક બાળકોથી માંડીને વડીલો બધાને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે કાલનો એક જ દિવસ છે તો કાલે જરૂર બધા ત્યાં વિઝિટ કરો અને આવા આપણા એક અમૂલ્ય તાડપત્ર કે જે કેવી રીતે હોય, એનું સ્વરૂપ શું, એની સંરક્ષણ કેવી રીતે થઈ શકે, એની માહિતી એના વિશે ડિટેલ જાણવાનો કાલનો એક દિવસ છે તો જરૂર કરજો। અને આજનો આ જે પ્રોગ્રામ છે, આ પ્રોગ્રામના ડિટેલ્સ પછી આપણા એપમાં એક ક્વિઝ રાખવામાં આવી છે આજના પ્રોગ્રામના અનુસાર, જે રાતના 10 વાગે ઓન થશે। આપણો કાર્યક્રમ 10 વાગે પૂરો થશે, એ 10 વાગે ઓન થશે અને આ જે ક્વિઝ છે એ રાતના 11:55 એટલે લગભગ 2 કલાકમાં એ ક્વિઝનો ટાઈમ પૂરો થઈ જશે। તો દરેકે દરેક બાળકોને ખાસ કહેવાનું કે આ બહુ ધ્યાનથી અટેન્ડ કરજો અને પછી એ ક્વિઝ પણ રમજો। તો હું વિજયભાઈને હવે વિનંતી કરું છું કે તેઓ આ પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ કરે। જય જય। हेलो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य कुनकुन स्वामी की तपोभूमि हिंदी में चलावीशू कारण के बधे प्रसारित थाय छे। आचार्य कुनकुन स्वामी की तपोभूमि तमिलनाडु के पोन्नूर क्षेत्र में, जहाँ से आचार्य भगवान स्वयं सदेह विदेह गमन हुआ, वो पुण्य धरा पर विगत 4 सालों से ताड़पत्र जिनवाणी माता का सुरक्षा कार्य, संवर्धन कार्य, मतलब उसे उसका वृद्धि करना, सुचारू रूप से आगे बढ़ाना, उसका संवर्धन करना, उसकी सुरक्षा करना आदि वहाँ पर चल रहा है। ये तमिलनाडु में आया है। मद्रास से, चेन्नई से करीब 140 किलोमीटर दूर पोन्नूर क्षेत्र है। वहाँ पर आचार्य कुनकुन जैन संस्कृति सेंटर एक अपनी संस्था है, वो कुनकुन काहन पारमार्थिक ट्रस्ट के अंतर्गत चलती है। वहाँ पिछले 4 साल से ये गतिविधि चल रही है।
देश भर में अनेक विधि कार्य धर्म प्रभावना के ये ट्रस्ट के द्वारा हो रहे हैं। उसमें एक अत्यधिक सोने में सुहागा के समान ये कार्य और बहुत अच्छी तरह से बहुत सुचारू तरीके से चल रहा है। आप बच्चे लोग बहुत अच्छे से, मुझे इतना आनंद होता है इतनी संख्या देख के। आप कृपया लगे रहना, बने रहना हमारे साथ, अपने साथ। बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, हृदय स्पर्शी विषय है, बहुत आनंद आएगा, आपको बहुत जिज्ञासा आएगी और वो सब समाधान करने का प्रयत्न करेंगे हम कि क्या ताड़पत्र कैसे होते हैं, कैसे लिखे जाते होंगे, कैसे आचार्य भगवान को प्राप्त होते होंगे और वो उसके बाद में उसका कैसे अभी तक 2000 साल से जो ये परंपरा चल रही है उसको कैसे अभी तक निभाया गया, ये सारी चीजों का हम प्रयत्न करेंगे इसमें कवर करने का। फर्स्ट आचार्य कुनकुन, नेक्स्ट। जैसे बताया, आचार्य कुनकुन जैन संस्कृति सेंटर कोन्नूर, वो आज कुनकुन काहन पारमार्थिक ट्रस्ट के अंतर्गत चल रहा है। नेक्स्ट। एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेके एक कार्य आगे बढ़ रहा है। लक्ष्य में सबसे पहले लक्ष्य की बात इसलिए करना है कि हमें जब मोटो पता होगा तो हम किसी भी काम को अचीव कर सकते हैं और उसको बहुत अच्छे से, हमें मोटो पता होना चाहिए, हमारे लक्ष्य हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो उसके लिए हमारा बहुविधि लक्ष्य है कि सिर्फ ताड़पत्र जिनवाणी को सुरक्षित करके न केवल उसको संभाल के रखना, उतना ही नहीं, कई गांवों के वहां जो परंपरा 2000 सालों से चली आ रही है उसमें वहां के नगरों के जिनालयों में और श्रावकों के घरों में ताड़पत्र ग्रंथ वहां 2000 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी, करीब अपन सोचेंगे कि 120 साल की एक पीढ़ी को अप्रोक्सीमेटली पकड़ते हैं एवरेज, तो करीब 100 पीढ़ी से ये काम चल रहा है। 100 पीढ़ी हमारे जैसे, आपके जैसे गृहस्थ इन ताड़पत्र ग्रंथों को संभालते उसमें वृद्धि करते, वो नष्ट होने से पहले उसकी प्रतिलिपियां बना के, अक्षरशः प्रतिलिपियां बना के, जिसमें एक बिंदु मात्रा का भी जिसमें फर्क न हो, वैसी प्रतिलिपियां बना के, और ये अभी तक चल रहा है। वो वैसे कई ग्रंथ है कि जो अभी हमारे लिए उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, तो उन ग्रंथालयों में, वो घरों में, वो जिनालयों में गर्भित उन ग्रंथों को निकालना, उसका परिचय करना, और यदि वो अनुपलब्ध है, अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं, वैसे ग्रंथों को एक किसी सुयोग्य तरीके से प्रकाशित करके, सुयोग्य तरीका बोलने के पीछे आशय ये है कि कोई भी ग्रंथ मिला उसको कैसे ही प्रकाशित कर देना, वो लक्ष्य नहीं है, क्योंकि एक शब्द भी यदि समाज के सामने और विद्वानों के सामने जाता है तो हमारे लिए एक चैलेंज होता है कि वो कैसे, किस तरह से अप्रूव होके, प्रमाणित होके आगे जाना चाहिए, जैसा है वैसा जाना चाहिए। ये सारी चीजों को ध्यान रख के, तो ये भी एक लक्ष्य है कि वैसा जिनवाणी माता का पूर्ण रूप से संवर्धन हो, सुरक्षा हो, वृद्धि हो। सिर्फ ताड़पत्र ग्रंथ नहीं, विविध प्रकार की कलाकृतियां, प्राचीन प्रतिमा जी वगैरह का भी सारा संवर्धन का कार्य, वो भी अपना हमारे लक्ष्य में है। मैं रेफरेंस इसलिए ले रहा हूं ताकि मेरा लिंक बना रहे और आपको भी दायरे के हाथ से अटैचमेंट रहे, तो समझने में और समझाने में दोनों बहुत आसान हो जाएगा। मैंने जैसे कहा कि समाज की जागृति बढ़ाना, कि कोई सिर्फ मोक्ष मार्ग अभी तो हमारा चल ही रहा है, क्योंकि प्रयोजन भूत अभी तक जो हमें प्राप्त है उसमें इतना प्रयोजन भूत है कि हम अपने आप को समझ सकते हैं, हम अपने आप में स्थिर हो सकते हैं, उतना तो प्रयोजन भूत है, मिला है। लेकिन
किसी किसी और विशेष स्वाध्यायियों का और विद्वानों की और जिज्ञासा होती है, या तो नए आने वाले जो युवा वर्ग है उनकी और जिज्ञासा होती है, तो उसके लिए उन ग्रंथों को निकाल के उसमें से जो मर्म निकाल के उसका अर्थघटन निकाल के और वो समाज के सामने लाना, वो सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य होता है और उसी को फॉलो कर रहे हैं। ताड़पत्र ग्रंथों में इतना वैविध्य है कि वो विषय अपन लेंगे, लेकिन सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के 682 साल तक जिनवाणी माता का जो परंपरा चली वो श्रुत ज्ञान मतलब वो श्रुत ज्ञान नहीं, जो गुरु परंपरा से मौखिक रूप से जो ज्ञान चलता था, जो गुरु अपने शिष्य को, वो शिष्य फिर अपने शिष्य को, इस तरह से और वो सारे श्रुतधराचार्य, जिसमें ये आचार्य भट्ट जो श्रुत केवली 5 हुए और फिर वो एक अंश के ज्ञाता और पूर्वों के ज्ञाता और अंगों के ज्ञाता जो मुनिराज आचार्य हुए, वो परंपरा 682 साल तक चली। उसके बाद में अंत में आज अंतिम श्रुतधराचार्य धरसेन स्वामी जिनको एक अंश का ज्ञान था, और वो आचार्य भगवान ने अपनी हमारे उपकार के लिए, और उनको पता चला कि अब आने वाले समय में सब मनुष्यों की क्षयोपशम और वो आदि धीरे धीरे क्रमशः कम होता जाएगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये पूरा जिनवाणी माता को लिपिबद्ध किया जाए, ताकि आने वाले 20,000 साल तक, क्योंकि वो समय 20,000 साल का चल रहा था, तो आने वाले 20,000 साल तक ये जिनवाणी माता और जिन शासन अविच्छिन्न रूप से चलता रहे, वो उद्देश्य से आचार्य धरसेन स्वामी ने अपने सुयोग्य शिष्य आचार्य पुष्पन स्वामी, आचार्य भूतबली स्वामी के द्वारा वो लिपिबद्ध करवाना चालू हुआ। सबसे पहले जिनवाणी माता ताड़पत्र पे लिपिबद्ध की गई, क्योंकि ताड़पत्र एक ऐसा माध्यम था कि जिसमें हमने वो भी पाया कि ताड़पत्र कैसे होता है, किस तरह से उसमें लिखा जाता है, क्योंकि इतने आपने कई साधर्मी भाई बहन वहां पर पधारे थे जिन्होंने दर्शन किए साक्षात, तो उन्होंने वहां बताया गया कि एक पतला 0.4 mm, आप समझना इतना पतला जितना अपना कपड़ा होता है, उतने पतले ताड़पत्र में दोनों साइड से दोनों पहलुओं पे कार्विंग करके, खुदाई करके वो लिपिबद्ध किया जाता था। वैसे ताड़पत्रों पे लिपिबद्ध करके, और वो 2000 साल से, क्योंकि ताड़पत्र एक लकड़ी है, इट इज पार्ट ऑफ, वो वृक्ष का एक पार्ट है, तो वो लकड़ी है, उसमें दीमक लग सकती है, उसमें ये जो एटमॉस्फेयर की, जो हमारे ये वातावरण की जो विषम परिस्थितियां, जैसे बारिश होना, जैसे ठंडी, गर्मी, धूप, गर्म हवा वगैरह में वो ताड़पत्र छिन्न भिन्न हो जाते हैं, टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो वैसे, लेकिन वो ताड़पत्र एकमात्र ऐसा पत्र है कि जो सारे पत्रों में एकदम श्रेष्ठ है। वो इतने पतले ताड़पत्रों में 3 से अधिक लेयर पाई जाती है, जिसमें एक आगे की साइड की लेयर वो हॉरिजॉन्टल, जैसे कपड़ों में ताने बाने होते हैं ना, कपड़े में ऐसे आड़ा धागा, खड़ा धागा, वैसे ताड़पत्रों में भी आड़ा धागा, खड़ा धागा, ऐसा वो उसका बंधारण होता है। उसमें आगे की साइड और पीछे साइड में हॉरिजॉन्टल आड़ी लाइनें होती है उसकी रेसों की, और बीच में आड़ी और खड़ी वैसे स्क्वायर में लाइनें होती है। वो बीच वाली लाइन जो लेयर है वो उसको स्ट्रेंथ देती है, और आगे और पीछे की लाइन में वो उसको खुदाई करके अंदर लिखाई जाता है। मतलब कई बार तो मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति ने जिनवाणी माता को लिपिबद्ध करने के लिए ही ताड़पत्रों का निर्माण किया हो, क्योंकि वो तत्कालीन उस समय के समाज और विद्वानों ने और आचार्य भगवानों की प्रेरणा से ये ताड़पत्रों का चयन किया। आपको जान के ऐसा वंडर होगा, ऐसा आपको सोच भी आएगी कि इतने पतले ताड़पत्रों का ही क्यों चयन किया। एक केले का पत्ता इतना बड़ा होता है, चाहे कितना लिख लो
चाहे चाहे जो उसमें ड्रॉ कर लो, लेकिन ये 2-2, 3-3, 4-4 गाथा जिसमें समाहित हो सके, वैसे पतले से ताड़पत्र में इतना सारा लिखने की क्या जरूरत थी। लेकिन ताड़पत्र के का चयन के पीछे ये कारण है, ये कारण दृष्टिगोचर होता है कि इसीलिए ये दूरदृष्टि वाले आचार्य भगवान और तत्कालीन विद्वानों ने ताड़पत्र पे ही लिखने का, अपना लिपिबद्ध जिनवाणी माता को लिपिबद्ध करने का शुरुआत किया। ताड़पत्र के बाद में तत्कालीन कई विद्वानों को, ये भी श्रेष्ठियों को, समाज के श्रेष्ठियों को ये विचार भी आया कि ताड़पत्र का आयुष्य बहुत कम रहता है, उसको संभालना पड़ता है, तो क्यों न शिलाओं पे जिनवाणी माता को अंकित किया जाए ताकि वो युगों तक चले। वो उद्देश्य से उन्होंने जिन सिद्धांतों को शिलाओं पे भी लिखने का प्रयत्न किया। आज हमारे सामने तमिलनाडु के कई क्षेत्रों में, श्रवणबेलगोला में, सीमागो में, कर्नाटक वगैरह में कई जगह पे शिलाओं पे अंकित जिन सिद्धांत और जिनवाणी हमें मिल रही है, लेकिन उसमें बहुत मर्यादाएं पाई गई। ये बताने के पीछे सिर्फ ताड़पत्र का हम प्रशंसा कर रहे हैं, हम ये सिद्ध करने जा रहे हैं कि ताड़पत्र ही क्यों। शिलालेखों पे लिखने से कुछ मर्यादा ऐसी पाई गई कि जैसे 18,000 श्लोक प्रमाण महापुराण, 18,000 श्लोक महापुराण यदि शिलाओं पे लिखा जाए तो पूरा पर्वत कवर हो जाएगा, और कहीं उसका श्रवण करना हो, उसका स्वाध्याय करना हो तो हम सबको वहां जाना पड़ेगा, खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। तो वो सारी चीजें जब लगा कि ये बहुत सुटेबल नहीं है, तो ताड़पत्र की परंपरा फिर वो वैसी ही बनी रही जैसी पहले से चालू हुई। करीब 400-450 साल के पहले, आज से करीब 400-450 साल पहले कागज का आविष्कार हुआ। तब यहाँ उत्तर भारत में हमारे कई विद्वानों ने कागज पे भी ग्रंथों को, जिनवाणी को लिपिबद्ध किया। उसमें पंडित बनारसी दास जी ने, नाटक समयसार जी 400 साल पहले, वैसे ही वही परंपरा में पंडित टोडरमल जी साहब, पंडित दौलत राम जी साहब, उन्होंने भी वो कागज पे लिपिबद्ध करने का किया। तो वो उतना ही अभी पिछले 400 साल से वो उतना ही हमारे लिए उपकार है वो कागज पे लिखे गए जिनवाणी का, कि जो दक्षिण भारत में वो परंपरा थी, उत्तर भारत में कागज पे लिखने की परंपरा चल रही। अभी 4 साल पहले से ये चीज एकदम ध्यान में ऐसी आई, विचार बहुत पहले से होगा, हमारे नेतृत्व को, हमारे ट्रस्ट के नेतृत्व को विचार होगा कि क्यों न इन ताड़पत्रों को और इन हस्तप्रतों को नष्ट होने से पहले उसको डिजिटलाइज करके सुरक्षित किया जाए, ताकि जिस तरह से हमें ये समृद्धि मिली है, ये इतना बड़ा वैभव हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को कैसे पता चलेगा कि ये इस तरह से जिनवाणी माता हमें मिल रही है। तो उसको डिजिटलाइज करने का उसको एक विचार आया, और अभी वो कार्य भी बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। वो आगे आगे हम उसको कवर करते जाएंगे कि उसको कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे उसका कार्य हो रहा है। ताड़पत्र और हस्तपत्र में बहुत वैविध्य है, उसमें भाषा का वैविध्य है, उसमें लिपि का वैविध्य है, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास उपलब्ध जो पाए गए ताड़पत्र आज से मतलब 100 साल से 450 साल के रेंज के उतने पुराने ताड़पत्र हमारे पास है। क्योंकि ये ताड़पत्र एक पुद्गल द्रव्य होता है, उसमें वो पूर्ण गलन उसका स्वभाव है, तो वो आते दिनों वो क्षय होते, वो नष्ट होता जाएगा। तो ताड़पत्र और हस्तपत्र को तत्कालीन समाज के, तत्कालीन जो लिपियां चल रही थी, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि हर 50 साल 100 साल में वो लिपियां और वो भाषाएं चेंज होती, बदलती जाती रहती है। तो वो तत्कालीन 450 साल के
ताड़पत्रों में वो उस समय के विद्वानों को जो भाषा वो लोग जानते थे, जनमानस में जो लिपियां चलती थी उसी लिपियों में उसको लिपिबद्ध किया गया। तो तमिलनाडु क्षेत्र में खास करके ग्रंथम लिपि चलती है और ग्रंथम लिपि पे ताड़पत्रों को अंकित किया गया। वैसे कर्नाटका में वो लिपि हले कन्नड़ लिपि जो 200-250 साल पहले चलती थी उसमें लिपिबद्ध किया गया। उसकी भाषाओं में भी काफी वैविध्य है। अभी आपको ये तमिल है वो तो समझ में आएगा, कन्नड़, प्राकृत, संस्कृत तो सब समझते ही हैं कि प्राकृत क्या होता है, क्योंकि आचार्य भगवान ने गाथाएं प्राकृत में लिखी, श्लोक संस्कृत में लिखे, तो वो तो हमें परिचित है। लेकिन ये मणिप्रवाल जो शब्द यहाँ पर है, मणिप्रवाल शब्द का उद्देश्य मैं आपको बहुत आप समझना कि जब आचार्य भगवान ने प्राकृत में किसी ग्रंथ को लिपिबद्ध किया या संस्कृत में लिपिबद्ध किया, उसमें किसी शब्द का भावभाषण यदि वो भाषा में नहीं है, जैसे कि तमिल में नहीं है, कन्नड़ में नहीं होता है, तो दूसरी भाषा का शब्द लेके और उसमें वो इन्वॉल्व करके दो भाषाओं का समन्वय करके और वो अभिव्यक्ति को समृद्ध बनाने के लिए वो आचार्य भगवान के भावों का पूर्ण भाव भाषण हो, वो उद्देश्य से मणिप्रवाल न्याय से ये साहित्य लिखा गया है, जिसमें कन्नड़ प्राकृत, कन्नड़ संस्कृत, तमिल प्राकृत, तमिल संस्कृत और मराठी, कभी कभी मलयालम, कभी उड़िया वैसे शब्दों का प्रयोग करके, क्योंकि उसके पीछे उद्देश्य ये था कि कहीं भी आचार्य भगवान के भाव का स्खलन न हो। यदि टीका लिखते हैं तो वही भाव आने चाहिए। हो सकता है किसी भाषा में वो शब्द का अर्थ न हो तो दूसरी भाषा में एडॉप्ट करके उसको बनाया गया। मतलब इतनी प्रतिबद्धता से ध्यान रखा गया कि कहीं भी जिन वचन में कहीं शंका न हो, कहीं वो आचार्यों के भाव भाषण को कहीं भी अन्यथा न लिया जाए, वो हेतु से इस तरह से वो मणिप्रवाल न्याय से भी ग्रंथों को लिखा गया है। जैसे मैंने बताया कि तमिलनाडु और कर्नाटक क्षेत्र के हर नगरों के जिनालयों में और श्रावकों के घरों में ये इस तरह से 100 पीढ़ी से ताड़पत्र जिनवाणी विराजमान होते हैं। वो कैसे होते मैं बताता हूं। जैसे अपन आभूषणों का डिब्बा जिसमें गहने दागिने होते हैं और वो सासू अपनी बहू को देते हैं और कहती है कि बेटा मेरी सास ने मुझे ये दिया था, मैंने वापरा है, अभी तुम उसको यूज करना और तुम अपनी बहू को देना। इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी ये सारे मतलब ये इतना वैभव वो दादाजी अपने पोते को उसको वचन मांगता था और विश्वास रखता था। पोता उनका विश्वास संपादित करता था कि जिनवाणी को नष्ट होने से पहले वो उसको अक्षरशः लिपिबद्ध करके वो संभाल के रखते थे और ना ही अपनी संभाल के रखते थे और गांव में और विद्वानों को और मुनिराजों को वो स्वाध्याय वगैरह हेतु उसको ज्ञान दान के रूप में अर्पित करते थे। मैं एक बहुत बड़ी चीज आपको मैं एक भाव भाषण कराना चाहता हूं। यदि 2000 साल पहले आचार्य कुनकुन स्वामी ने और उनके बाद में आचार्य उमा स्वामी भगवान ने जैसे 357 सूत्रों की रचना करके तत्वार सूत्र जी ग्रंथ एक लिपिबद्ध किया। तत्वार सूत्र जी 500 साल के बाद, आप सोचिए 500 साल, जो मैं एक सेकंड में 500 साल बोल देता हूं वो उतना आसान नहीं होता है। 500 साल के लिए 500 साल लगते हैं। 500 साल तक ये हमारे और आपके जैसी गृहस्थ परंपरा ने उस तत्वार चित्र जी को वैसा का वैसा क्रम से बनाए रखा, उसकी अनेक लिपियां बना के रखी, तब जाके आचार्य पूज्यपाद स्वामी को वो तत्वार सूत्र जी मिला, तब हमें आज सर्वार सिद्धि जी प्राप्त हुई है। वैसा ही पंच परमागम के विषय में है कि वो समयसार जी की 415 गाथा 1000 साल तक अमृतचंद्र स्वामी को मिली, तब जाके हमें तत्परिवृत्ति जी प्राप्त हुई। 300 साल के बाद जयसेन स्वामी को वो मिली, तब हमें तात्पर्यवृत्ति टीका प्राप्त हुई। वो परंपरा में वो 400 साल, उसके 400 साल पहले आज से वो
बनारसी दास जी को मिली होगी, तब जाके हमें नाटक समयसार मिला। वैसे ही आप समझते रहना कि गुरुदेव तक 100 साल के पहले जो वही समयसार जो परम सुख प्रभाव मंडल ने प्रिंट किया था वो गुरुदेव श्री को मिला, तब जाके हमें आज समयसार सिद्धि और प्रवचन रत्नाकर हमें मिल रहे हैं। आप सोचिए कि ये परंपरा कितनी मजबूत बनी है। कहीं एक जगह भी यदि स्खलन होता था तो आज हमारी स्थिति क्या होती थी, उसका हम सोचना भी हमारे लिए रोम को पूरा हमारे मन को हिला देता है कि हम सिर्फ और सिर्फ ये मुरारी बाबू की कथा सुन के ताली बजा के घर पे जाके आराम करते होते। ये ताड़पत्र जब गांवों के जिनालय और घरों से हमें प्राप्त होते हैं, प्राप्त होने के लिए वहां के समाज की एक बहुत अच्छी नीति है, क्योंकि वो सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने ऐसी नीति बनाई कि जैसे हम गहनों का डिब्बा किसी को दिखाते नहीं है, उसको आम नहीं करते हैं, वो हमारे लिए स्पेशल होता है, बहुत संभाल के रखते हैं। उसी प्रकार वो वहां के विद्वान, अरे वहां के श्रावक और गृहस्थजन, वो अपने घरों की जिनवाणी को किसी को देना तो दूर, सिर्फ दिखाने के लिए वो एजिटेट होते थे, क्योंकि कहीं किसी ने उसको कैसे हैंडल कर दिया, छू लिया, टूट गया, तो वो सारी वो नीति से वो लोग संभाल के रखते थे। आज हम ऐसी अवस्था में वहां पहुंचे हैं कि वहां के घरों में से और जिनालयों में से हमें स्वयमेव ताड़पत्र जिनवाणी हमें प्राप्त होते हैं। उसके लिए हमारे संस्था के नेतृत्व में आदरणीय अनंत मामा और निमेश भाई और पूर्व के सारे जो हमारे नेता थे, जो नेतृत्व थे, उन्होंने बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत परिश्रम किया है, क्योंकि वहां के समाज में वो विश्वास संपादन करने के लिए कि ये जिनवाणी यदि आप हमें देंगे तो हम उसका कैसा सुरक्षा करेंगे, कैसे हम उसके लिए हमने एक एसओपी बेस, स्टैंडर्ड ऑपरेटर प्रोसीजर एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बेस एक कार्य प्रणाली बनाई है। वो कार्य प्रणाली हमने वो लोग को एक्सप्लेन की, उनको बताया कि हम इस तरह से जिनवाणी का संरक्षण करेंगे। तो उसके अंतर्गत ये पूरी गतिविधि है, उसके क्रम है, मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमने कैसे भी चीला चालू तरीके से जिनवाणी मिली, उसको कैसे भी उसको काम कर दिया, वापस दे दिया, इस तरह से नहीं करते हैं। प्रत्येक स्टेप का हमारे पास एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम है कि जैसे जिनवाणी वहां से गांव से प्राप्त होती है, प्राप्त होने के बाद सबसे पहले उसमें हम जीव अवलोकन करते हैं। जीव अवलोकन इसलिए करते हैं कि किसी उसमें कितने कोई जीव जंतु लग गए हैं कि नहीं, क्योंकि पता नहीं था कि कितने साल पहले उसका सुरक्षा कार्य किया होगा, कितने साल के लिए उसको संभाला गया होगा, खोल के देखा गया होगा। तो जीव अवलोकन के बाद उसमें यदि कहीं जीव पाए जाते हैं तो जिनवाणी माता की आज्ञा के अनुसार उसका जीवों का परिमार्जन करते हैं। वो सबसे पहला हमारा कर्तव्य वाला कार्य है। उसके बाद में सबसे चैलेंजिंग वाला काम वो आता है कि उसको क्रम से लगाना, हर पत्रों को, क्योंकि आज देखा होगा कि ताड़पत्र जिनवाणी में कहीं बाइंडिंग नहीं होता है, प्रत्येक पत्र अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए होता है। तो वैसे 300, 400, 250 पत्रों का एक ग्रंथ होता है, तो उन ग्रंथों को सबसे पहले क्रम से लगाना वो हमारा बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि जब उसको डिजिटलाइज करते हैं तो एक एक जैसे एक हम आगे जाते जाएंगे तो क्रम से पत्र खुलना चाहिए। वो उद्देश्य से सबसे पहले क्रम से लगाते हैं। क्रम से पत्रों को लगाने में हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए है कि वो पत्र में कहीं एक कोने पे वो पत्र क्रमांक लिखा हुआ होता है, वो किसी वजह से वो पत्र का क्रमांक टूट गया है, तो वैसे प्रसंगों में हम उसमें लिखे हुए गाथा, श्लोक, सूत्रों का रेफरेंस लेके उन पत्रों को क्रम से लगाते हैं। वो गाथा, सूत्र और श्लोक को समझने के लिए, वो चैप्टर को समझने के लिए हमने वो लिपियां भी आत्मसात की, ताकि हम वो अपना कार्य बहुत सुचारू रूप से कर सके। जब सॉफ्ट कॉपी वो बनती है तो वो क्रम से प्रत्येक पत्र उसमें मिलना चाहिए,
वो उद्देश्य से हमने वो भी परिश्रम किया और उसमें बहुत सक्सेसफुली वो हम आगे बढ़ रहे हैं। क्रम से लगने के बाद अभी क्रम का मैं वापस एक भाव भाषण कराना चाहता हूं। मान लो 415 गाथा यदि क्रम से न होती, 357 सूत्र वो 10 अधिकार यदि क्रम से न होता, तो हमें आज वो सिद्धांत वो हम कैसे समय सारणी पूर्ण रूप से हम पा सकते थे। तो इसलिए आने वाली पीढ़ियों को वो क्रम से मिलना चाहिए। वो उद्देश्य से पूरा क्रम से चैप्टर वाइज उसको उसमें बाइफ्रिकेट करके उसका फोल्डर बना के प्रत्येक ग्रंथ को इस तरह से डिजिटलाइज किया जाता है। डिजिटलाइजेशन करने के लिए हम लेटेस्ट फॉर्मेट का उपयोग करते हैं ताकि उसको कहीं और किसी फॉर्मेट में स्विच ओवर करना पड़े तो हम बहुत आसानी से कर सके। उसको बहुत हाई रेजुलेशन से उसको हम डिजिटलाइज करते हैं कि ताकि उसका 20 गुना बड़ा यदि बैनर बनाया जाए तो भी उसके अक्षरों में कहीं ब्रेक ना हो, वो उसको भी अभी ध्यान रखते हैं ताकि आने वाले कई सालों तक वो वैसा का वैसा बना रहे। डिजिटलाइज करने के बाद बहुत ही जरूरी कार्य उसको सुरक्षित करना, उसको प्रिजर्व करने का होता है। प्रिजर्व करने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। काफी उसके जो अनुभवी व्यक्तियों को हमने जाके उनको मिले हैं और हमने काफी उसमें संशोधन किया है, उसमें बहुत इन्वेंशन किया है, बहुत स्टडी किया है, तब जाके हमने वो एक पॉट डेवलप किया है कि जिससे हमें ये और आने वाले 20-20 सालों तक उसमें जीव की उत्पत्ति न हो, दीमक वगैरह न लगे। वो उद्देश्य से मतलब 20 साल की पीढ़ी, आज हमारी जिम्मेदारी हम बाखूबी निभा रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी तक वो हम उसको बहुत अच्छे से हैंड ओवर कर सके। उसमें उन द्रव्यों में वो औषधि युक्त द्रव्य है, सारे निर्दोष वनस्पति के अर्क है, कोई केमिकल वगैरह का उपयोग नहीं होता है। उसमें मैं बोलूंगा एक एक नाम, आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। उसमें क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, उसमें निम्बोड़ी का तेल, नीम सीड ऑयल, उसमें लेमन ग्रास ऑयल, उसमें इरंडी का तेल और वो 2000 साल की परंपरा से एक वनस्पति का तेल जो कर्नाटक वगैरह में चल रहा है, वो सभी तेलों के उसके प्रॉपर्टीज को हमने स्टडी किया, उसके गुणधर्मों को देखा और उसके अनुसार उसका एक स्टैंडर्ड परसेंटेज से हमने एक पॉट बनाया और वैसा द्रव्य हम प्रत्येक पत्रों को दोनों साइड अप्लाई करते हैं ताकि जैसे मैंने बताया कि आने वाली हमारी एक पीढ़ी 20 साल तक उसमें जीव नहीं लगेंगे, उसकी लचकता वैसी ही बनी रहेगी कि पत्र सूखेगा नहीं, उसका नेचुरल मॉइस्चर वैसा इंटैक्ट रहेगा कि वो ब्रिटल होके टूट नहीं जाएगा। इस तरह से उसका ये कार्य होता है। प्रिजर्वेशन के बाद बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको लगेगा कि लिपियां कौन जानता है, तो हमें वैसे भी विद्वान मिले हैं। हमें वो विद्वान जैन आगम के विद्वान ही चाहिए, क्योंकि अन्य मति के बहुत विद्वान हैं, लेकिन हम उनका आश्रय बिल्कुल नहीं लेते हैं जो ये लिपियां बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन उनसे हमारा जो कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको 9 पदार्थ, 7 तत्व, अनेकांश, स्याद्वाद आदि उनको नहीं पता है, तो हमें वो क्या अर्थघटन बताएंगे। तो इसलिए हमने वो विद्वानों का हमें बहुत मुश्किल से मिला। तमिलनाडु इतने 8 करोड़ तमिल लोग वहां रहते हैं, लेकिन ये लिपि जानने वाले जैन विद्वान मुश्किल से उंगली पे गिन सके वैसे 5-7 विद्वान हैं जो ये लिपि जानते हैं। उसमें हमारे ही घर में वो ढूंढते ढूंढते हमारे ही घर में एक विद्वान हमें मिले, पंडित जम्बू कुमार जी शास्त्री, चेन्नई। आपको हर्ष होगा कि वो टोडरमल स्मारक के 4थे बैच के शास्त्री विद्वान है। अभी आप उनका लेवल आप समझिए, क्योंकि ये लेवल बताने के पीछे हम उनके ऋणी हैं, और दूसरा कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो इतना सिस्टमेटिक हो रहा है ताकि आने वाली पीढ़ी को कहीं भी मिसगाइड ना हो कि ये और वो प्रमाणित हो। वो हेतु से ऐसे विद्वानों का हम आश्रय लेते हैं। पंडित जम्बू कुमार जी शास्त्री, उनको तमिल पता है क्योंकि तमिलनाडु से है।
उनको संस्कृत और प्राकृत वो सीखे हैं जयपुर से, उनको जैन आगम पता है, उनको देवनागरी लिपि पता है, उनको हिंदी पता है, तो इससे बड़ा हमारे लिए क्या विद्वत्ता में कौन सा गुण चाहिए? वो सारे गुण जम्मू कुमार जी शास्त्री साहब में उपलब्ध है। वैसे ही कर्नाटक के क्षेत्र में पंडित डॉक्टर सुरेश कुमार जी जैन, जो मैसूर यूनिवर्सिटी के जैनोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, आप उनका लेवल समझिए। वो भी मूलाचार जी जैसे कठिन ग्रंथ में उन्होंने पीएचडी किया। आज रिटायर्ड वो डॉक्टर साहब जो विद्यार्थी पीएचडी के विद्यार्थी है, उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं। वैसे लेवल के विद्वान आज हमारे कन्नड़, जो हले कन्नड़ लिपि में लिखे हुए ग्रंथों का परिचय और विवेचन में दे रहे हैं। मतलब इससे ये पता चलता है कि प्रत्येक स्टेप को, प्रत्येक एक एक कदम को कितनी दक्षता से और सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाता है। वो विद्वानों के द्वारा हम जो स्कैनिंग किए हुए पत्रों को एक एक पत्र खोल के हम उनको दिखाते हैं, उन पत्रों का वो एक एक ग्रंथों का वो परिचय लेते हैं और उनके सामने बैठ के मैं स्वयं अपनी भाषा में लिखता हूं और फिर उसका एक हमने स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट बनाया है जिसमें ग्रंथ का नाम, रचयिता, उसके लिपिकार, लिपि कौन सी है, भाषा कौन सी है, कहाँ लिखा गया, किसने लिखा, किस जिनालय में बैठ के लिखा, वो सारा विवेचन एक लेबल जिस तरह से यहाँ बताया गया है वैसा एक स्टैंडर्ड लेबल बना के प्रत्येक पत्रों को वो लेमिनेट किया हुआ लेबल लगाया जाता है, प्रत्येक ग्रंथ को वो लेबल लगाया जाता है, ताकि ग्रंथ का बंधन खोलते ही किसी भी साधर्मी को तुरंत पता चलेगा कि ये ग्रंथ में क्या है, कैसा लिखा है, कब लिखा है, वो सारा विवरण एक परिचय खाली एक फॉर्मेट में मिल जाएगा। इस तरह से हम उसका लेबल बना के हम करते हैं। वही कार्य प्रणाली। इतना होने के बाद हम ये जिनवाणी को नए वस्त्रों में बंधन करके वो लेबल लगाया हुआ जिनवाणी वापस वो यथास्थान वो जिनालयों में जाके विराजमान करते हैं। ये हमारा एक स्टैंडर्ड ग्रंथ प्राप्ति से लेके जिनवाणी माता को वहां उस जिनालय में उस घर में जाके विराजमान करने तक का एक स्टैंडर्ड प्लान हमने जो बनाया है, वो प्रोग्राम हमने वहां के समाज को, वहां के जो समाज के जो अग्रगण्य है उनको ये चीज हमने एक्सप्लेन की, उनको बताया, तब जाके उन्होंने हमारे पे विश्वास रख के इस तरह से जिनवाणी माता हमें प्रोसेस करने के लिए दी गई। नेक्स्ट हाँ सी इस तरह से, हाँ नहीं ये रख दो, ये नहीं ये बताओ जी आगे। हाँ अभी तक करीब 14 आपको मुझे बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि आज तक हमने 14 नगरों के 14 गांवों के 880 जिनवाणियों को के 2,09,000 से अधिक पत्रों को डिजिटलाइज किया है, उसको सुरक्षित किया है और उसको यथास्थान विराजमान किया है। मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा, 2,09,000 से अधिक पत्रों को हमने स्वयं अपने हाथों से कई बार हैंडल किया है, कई बार उसको यही एसओपी के द्वारा उसको प्रोसेस करके वहां यथास्थान विराजमान किया है। इतना बड़ा कार्य ये 4 सालों में हमने सिद्ध किया है। नेक्स्ट मान लो नहीं बोला छिन्न भिन्न पत्र मान लो ये लक्ष्य, देखो एक लक्ष्य ये भी है कि मान लो ये पत्रों को हम नई जिनवाणी ताड़ पत्रों को हम न संभाले तो इसकी इस तरह की अवस्था होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि मैंने आगे बताया कि ये एक लकड़ी का पार्ट है, ये वृक्ष का एक पार्ट है, उसमें दीमक बहुत आसानी से लग जाती है। तो अभी पूर्व में विधर्मी आक्रमणकारियों के उपद्रव के कारण और इन जीवों के उपद्रव के कारण और ये जो एटमॉस्फेरिक
जो विषमताओं के कारण जो वो पत्रों को जो हम वंचित हो गए हैं, अब हमने, हमारी संस्था ने सोचा है कि पूर्व में कई धोखे खा चुके, लेकिन अब नहीं खा सकते हैं। इसलिए उन ग्रंथों को जैसे हैं वैसे, जैसे हमें मिल रहे हैं वैसे उसको संभालना, और आने वाले 18,500 साल तक ये जिन शासन वैसा का वैसा हमारे सामने मिलता रहे, वो उद्देश्य से ये सारा कार्य हो रहा है। ये अभी बहुत एक मैं आपको ताड़पत्र के विषय में बहुत इंटरेस्टिंग ये मैं बताऊंगा कि जैसे समयसार जी की यात्रा 2000 साल पहले समयसार जी की रचना हुई, उसकी लिपि वगैरह जो आज हमें उपलब्ध है ताड़पत्रों में, वो ग्रंथम लिपि है। ताड़पत्रों में जैसे मैंने बताया कि कार्विंग करके लिखा हुआ होता है, उसमें एक विशेषता है ताड़पत्रों में कि कहीं दो शब्दों के बीच में कहीं गैप नहीं होता है। आप समझना, इसके पीछे में उसका जो मैं दृष्टि बताऊंगा कि ये बात करने के पीछे लक्ष्य क्या है, और उसका परिणाम स्वरूप हमारे पास जो जिनवाणी है वो कैसे हमें प्राप्त हुई, उसके पीछे 2000 साल से किन किन मुनिराजों ने, विद्वानों ने कितना परिश्रम किया है, तब जाके हमें इस तरह से जिनवाणी माता हमें प्राप्त होती है। करेक्ट। उन पत्रों में, ताड़पत्रों में कहीं कॉमा नहीं होता है, कहीं फुल स्टॉप नहीं होता है, कहीं पैराग्राफ नहीं होता है, क्योंकि वो उतनी जगह का भी वेस्टेज नहीं करना, ये मात्र उद्देश्य होता था। और एक ये भी विश्वास था कि हमारे आने वाले शिष्य परंपरा उसको बहुत अच्छे से समझ पाएगी, वो भी उतना लक्ष्य में था उन आचार्य और मुनिराजों के हृदय में। जैसे करेक्ट, मुझे इतना नजदीक से नहीं आता है, लेकिन मैं, हाँ अभी क्लियर है। जैसे ये समयसार जी का एक फ्रंट पेज है, उसमें आप देखेंगे ये ग्रंथम लिपि है। सिर्फ आपको मैं भावासन कराता हूं क्योंकि लिपि आपको नहीं पता है, लेकिन ये सबके हृदय में लिखी हुई है। ये प्रथम गाथा वंदितु सर्वसिद्धे, लेकिन ये दिखा के मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं कि उसमें क्या क्या विशेषताएं रहती है। उसमें शब्दों के बीच में कोई गैप नहीं होता है, कहीं फुल स्टॉप नहीं होता है, कहीं कॉमा नहीं होता है। अब यहां से ये वंदितु, ये यहां से स्टार्ट होता है, वंदितु सव्वसिद्धे। अब ये जो वंदितु सव्वसिद्धे में ना तो वंदितु के बीच में कोई गैप है, न तो ये सव्वसिद्धे के बीच में कोई गैप है। फिर भी वो विश्वास जो गुरु को जो विश्वास था कि हमारी शिष्य परंपरा उसको सुचारू रूप से समझेगी, मौखिक रीत से उनको ज्ञान दिया कि ये शब्द वो है। सिर्फ ताड़पत्रों पे नहीं लिखा, मुनिराजों ने, आचार्य भगवानों ने, विद्वानों ने वो अपने शिष्य परंपरा को वो बराबर एक्सप्लेन किया, तब जाके आज हमें इतना सुचारू रूप से ये जिनवाणी मिल रही है। तू मचल मणो वदम गदिम पत्ते वोच्छामी। अभी वोच्छामी के बाद में ये पत्र टूटा हुआ है, वो ठीक है, लेकिन वोच्छामी के बाद में समय, मतलब यहां वोच्छा था और फिर मी यहां लिखा हुआ है। आप सोचिए कि वो वोच्छामी पूरा यहां ले सकते थे, लेकिन वो अनावश्यक प्रयोग नहीं करना, वो हेतु से ताड़पत्रों को भी वो परिग्रह, पूर्ण परिग्रह के त्यागी मुनिराज, उसमें वो उसका अनावश्यक उपयोग न हो, वो हेतु से वोच्छा तो यहाँ लिखा और मी वहां से चालू किया, वोच्छा मी समय पाउड़ मीणमो सुध केवली बणितम। इस तरह से पूर्ण, ये एक एग्जाम्पल है। वैसे ही सारे ग्रंथों में और सारी जिनवाणी में हमें समझना चाहिए। उसके बाद तुरंत कहीं पर भी
वो तुरंत गाथा की अर्थ और टीका स्टार्ट शुरू होती है, खाली एक छोटा सा स्टार मार्क किया है कि यहाँ गाथा समाप्त हुई और फिर उसकी टीका और चालू हुआ। इस तरह से सारे पत्रों में यही पद्धति से लिखा जाता था। और इसी तरह से आज मैं एक चीज बहुत स्वर्णिम काल कैसा हमारा चल रहा है वो बताना चाहता हूं कि वो प्राचीन समय में जब किसी एक ग्रंथ का यदि किसी विद्वान को स्वाध्याय करना होता था तो सिर्फ उन्हीं के पास, उन्हीं के सामने चौकी पे एक ग्रंथ विराजमान होता था जिसमें गाथाएं होती थी, दूसरा ग्रंथ होता था जिसमें खाली अर्थ होते थे, तीसरा ग्रंथ होता था शायद उसमें उसकी टीका होती थी, और वो एक पत्र को गाथा सुनाते थे, फिर उसका अर्थघटन सुनाते थे, फिर उसका टीका सुनाते थे, और सामने बैठे हुए सारे श्रोतागण बड़ी प्रतिबद्धता से और एकाग्रता से उसको सुन के ग्रहण करते थे। आज हम यदि एक वक्ता के पास में एक ग्रंथ है तो 200 श्रोताओं के पास में 200 जिनवाणी विराजमान है। वो अक्सर से वहां देखते हैं ताकि वो उनको पा सके, उनको अच्छे से अटेंड कर सके। वो उद्देश्य, मतलब आप सोचिए कि स्क्रीन के ऊपर आज अक्सर सिर्फ हमें वो प्रवचन के नीचे हाइलाइटर भी चलता है, प्रत्येक लिटी के नीचे सिर्फ हमें एक काम करना है कि उपयोग लगा के सिर्फ हमें बैठना है। आप सोचिए इतनी सुविधा ये पिछले 2000 साल में किसको प्राप्त हुई होगी। आज ये हमारे लिए बहुत बड़ा जिन शासन पाने का इतना बड़ा हमारे लिए सुअवसर है। यदि वो अवसर हमने गंवा दिया तो फिर हमारे लिए कोई स्कोप नहीं है जो निगोद आदि से हमें जो बचा सके। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ना ही सिर्फ गाथाएं, श्लोक और सूत्र को आचार्य भगवानों ने लिपिबद्ध किया, वो उन्होंने ये एक एग्जाम्पल है जिसमें सिद्ध चक्र विधान का मानना है। जो प्रत्येक जिनालयों में, गांव में, नगरों में जो सिद्ध चक्र विधान होता है उसका मानना भी इस तरह से पूरा बनाया है। वो एक पत्र में पॉसिबल नहीं है तो 3 पत्रों को अलाइन करके उसमें बहुत अच्छे से आप उसमें पढ़ पाएंगे कि वो उसमें देखो 8 कोष्ठक लगे हैं और उसमें ये उसका सारा डिटेलिंग है पूरा। इस तरह से सिद्ध चक्र मंडल का मांडना बना के हमारे लिए इतना सहज काम करके उन्होंने दिया है। માંડલું, हाँ માંડલું એટલે हिंदी में मांडना कहते हैं, गुजराती में માંડલું कहिए छे આપણે। ये देखिए जैसे मानस्तंभ जी यहाँ विराजमान है वैसी मानस्तंभ की प्रतिकृति कि किस तरह से होना चाहिए उसके स्टैंडर्ड मेजरमेंट के अनुसार उसको बना के और इस तरह से हमारे लिए बना के दिया कि ये देखिए उसके मेजरमेंट से कि वो कितनी उसकी लंबाई होनी, कितनी चौड़ाई होनी, उस पर का विमान कैसे होना, उसमें जिनेंद्र भगवान कैसे विराजमान करे ताकि कितनी दूर से वो दिख सके। वो सारा कैलकुलेशन उन आचार्य भगवानों को, वो हम सोचेंगे कि हम बहुत एडवांस है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो इस तरह से ताड़पत्रों पे देखो ये उसका है ना क्लोज, वो वैसा भी एक क्लोज ड्राइंग बनाया है कि सिर्फ उससे वो देखते ही पता चलेगा कि वो किस तरह से उन्होंने ऊपर का विमान बनाया हुआ है। नेक्स्ट, ये अष्ट मंगल द्रव्य और अष्ट प्रातिहार्य हम प्रत्येक जिनालयों की वेदी में बना हुआ देखते हैं। उसका भी ताड़पत्रों पे ही विवरण है। एक कोई एक चीज, मतलब ये सब बता के क्या सिद्ध होता है कि एक भी चीज मन गढ़त नहीं है। ये चीज वो केवली भगवान द्वारा प्रणीत धर्म ने जो गणधर देव ने जो बताया और वो आचार्य भगवान और मुनिराज ने लिपिबद्ध किया, वो सब हमारे सामने। देखिए इसमें अष्ट मंगल द्रव्य और ये अष्ट प्रातिहार्य इन ताड़पत्रों पे उत्कीर्ण है और इसलिए हम इतनी सहजता से वो हर जिनालयों की वेदियों में हम उसको वो कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। इन ताड़पत्र ग्रंथों के संरक्षण के और इतना एक्सप्लेनेशन करने के पीछे का उद्देश्य कि
हमारे में से हम ही इतनी गतिविधि कर रहे हैं और हमारे में से किसी को कोई नया आइडिया हो, कोई विचार हो, कुछ आप हमें कुछ बताना चाहते हो, तो आप बहुत आसानी से बिना किसी डिस्टरबेंस से आप हमें बताइए। आपके विषय में और कुछ जानकारी हो तो वो भी आप हमको बताइए, हम उसमें कुछ संशोधन करेंगे और आने वाले प्रेजेंटेशन में हम उसको समाहित करके और आगे हम उसको बढ़ा सकें। यदि किसी तरह से कोई नई टेक्नोलॉजी इस विषय में आपके ध्यान में आती है तो वो भी हम आपके लिए एक वो इनवाइट करते हैं कि आपके यदि समझ में कुछ ऐसा कुछ नया सजेशन हो, नई टेक्नोलॉजी हो, तो वो भी हमारे सामने आप प्रस्तुत कीजिए। तो हम बहुत बहुत अच्छे से और बहुत आदर के साथ उसको स्वीकारने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य जिनवाणी माता की सुरक्षा हो, संवर्धन हो और वो इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। इस कार्य को करने के लिए हमें लगातार आदरणीय अनंत मामा परिवार, निमेश भाई परिवार और वहां के ट्रस्टीगण के उनका लगातार मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। क्योंकि उनके मार्गदर्शन और उसके बगैर ये कार्य होना असंभव है। कई विद्वान उसमें इन्वॉल्व है, जैसे पंडित जम्मू कुमार जी शास्त्री साहब, डॉक्टर सुरेश कुमार जी साहब, वहाँ जो विशाखाचार्य तपोनिलय है वहाँ के ब्रह्मचारी शांत कुमार जी, अपने ब्रह्मचारी है हिम्मत भाई जी वगैरह विद्वानों का लगातार हमें मार्गदर्शन हमें मिलता है और उसी की वजह से ये सारा कार्य बहुत सुचारू रूप से दक्षता के साथ आगे बढ़ रहा है। एक मैं बहुत बड़ा चीज आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर एक हस्तप्रत में लिखित आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी की टीका के सहित प्राकृत त्रय हमारे पास विराजमान है। प्राकृत त्रय, प्राकृत सिर्फ जैन टर्मिनोलॉजी का शब्द है। प्राकृत का मतलब होता है कि तीर्थंकर भगवान की वाणी जो स्वयं आचार्यों ने लिपिबद्ध की हो उसे प्राकृत कहते हैं। और उसमें प्राकृत त्रय में समय सार जी, प्रवचन सार जी और पंचास्तिकाय जी, ये प्राकृत है कि आचार्य प्रभाचंद्र की स्वामी की टीका हमें 280 साल पुराना एक ग्रंथ बेंगलोर के जिनालय से में प्राप्त हुआ। उसकी ये फ्रंट पेज की कॉपी है। आज वो हमारे सब लोग परिचित है। वैसे रमेश जी भंडारी साहब, वो उनके बहुत प्रयत्न से डॉक्टर सुरेश कुमार जी उसका अनुवाद कर रहे हैं। ऑलमोस्ट तीनों ग्रंथों के टीका के साथ का कन्नड़ में से देवनागरी लिपि में अनुवाद हो चुका है। अब उसको मैंने बताया वैसे किसी सुयोग्य तरीके से और विद्वानों के सामने रख के और उसको प्रमाणित करके फिर उसका डिटेलिंग अर्थघटन निकाल के फिर उसको प्रकाशित किया जाएगा। इस तरह से ये कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ ग्रंथ रखे रहे, ऐसा नहीं है। यदि कोई नया ग्रंथ मिलता है, नई कुछ उपलब्धि में प्राप्त होती है, तो उसको प्रकाशित करना वो भी एक हमारा बड़ा लक्ष्य है। ये कार्य करने के लिए हमें अभी तक कई अनुभवी संस्थाओं का हमें मार्गदर्शन मिला है। उसमें अहमदाबाद की महावीर आराधना केंद्र कोबा के ज्ञान मंदिर के जो वहाँ के जो ट्रस्टीगण और वहाँ के जो अधिष्ठाता है, जो उनका हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। और भी कई संस्थाएं जो हमारे ही साधर्मी है, जिनका अहमदाबाद में बहुत बड़ा कार्य है। हितेन भाई और तीर्थेश भाई, उनकी ऑफिस में ये मैं जो बड़े बड़े ताड़पत्र ग्रंथ है वो पुन्नूर से मैं यहाँ पर अहमदाबाद लेके आता हूँ और उन ग्रंथों को एक ग्रंथों को डिजिटलाइज करके, क्योंकि वो ग्रंथ जो हमारे पास जो स्कैनर मशीन है उससे बड़े साइज के यदि ताड़पत्र ग्रंथ मिलते हैं तो उसको भी हम नहीं छोड़ते हैं। वो अहमदाबाद लाके उसको उसी तरह से डिजिटलाइज करके और उसकी सॉफ्ट कॉपी बनाते हैं। तो वो कार्य करने के लिए वो हितेन भाई और तीर्थेश भाई, वो उनका भी बहुत बड़ा हमारे लिए सहयोग है। एक बहुत अच्छी टीम, आप सोचोगे कि ये टीम, इसके पीछे कौन कौन कार्य करता होगा,
तो वो भी बहुत दक्ष कारीगरों की टीम बनी है। ऐसे किसी को भी चयन करके बिठाया नहीं गया है। वो बड़े विद्वान शास्त्री लेवल के लोग हैं, जैसे पंडित संभव कुमार जी शास्त्री, अपने पुन्नूर के मैनेजर, जो अपने मैनेजर साहब है राजीव कुमार जी जैन, और फिर उसका जो डेटा जो बनता है उसको अच्छे से संभालने के लिए हमारे विले पार्ले में भव्य भाई मेहता और पंडित राहुल जी शास्त्री वगैरह लगातार और दक्षता के साथ ये सारा कार्य करके उसको पूर्ण रूप से उसको ऐसा पेश करते हैं और ऐसा संभाल के रखते हैं। आज तक हमने 7 TB 7400 से ज्यादा GB का हमारे पास डेटा तैयार हुआ है। आप ये रियलाइज कर पाते होंगे कि ये कितनी बड़ी संख्या है। जब 2 लाख पत्रों का 2,09,000 पत्रों से अधिक पत्रों का जब डेटा संग्रह होता है, वो 7 TB से ज्यादा डेटा आज तक, वो डेटा हम कैसे, मैं बताता हूं, आप जस्ट एक लास्ट है मैं बताता हूं कि प्रत्येक 14 नगरों के ग्रंथों को हम जब उसको डिजिटलाइज करते हैं तो प्रत्येक ग्रंथ का एक यूनिक नंबर है। हम सिर्फ 3 कमांड देंगे तो उस गांव का, उस ग्रंथ का वो पेज हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगा। इतनी दक्षता से सारा कार्य होता है। उसके बाद में ये सिर्फ ना ही एक कॉपी बनती है, उसके कई बैकअप बना के उसको सुरक्षित करते हैं ताकि किसी भी वजह से उसमें कहीं करप्ट हो जाए तो हमारी मेहनत पूरी लगातार बनी रहे और उसकी हमें सफलता मिले। वो उद्देश्य से उसको क्लाउड में भी लोड किया जाता है ताकि क्षण मात्र में, यदि भले ही काम पुन्नूर में होता है लेकिन विश्व में, दुनिया में कहीं भी किसी को भी ये यदि ग्रंथ चाहिए तो उनको एक कुछ क्षण मात्र में वो उनको स्क्रीन के उपलब्ध हो सकता है। इस तरह की पूरी व्यवस्थापन इसमें समाहित की गई है। अब वो समय है कि इस विषय में किसी को कोई जिज्ञासा हो, कोई कुछ पूछना चाहता हो तो हमारे लिए कुछ 5 मिनट 7-8 मिनट का अवकाश है। आप ये मैं माइक दूंगा, या तो ऐसे ही कोई नजदीक आके कोई पूछ सकता है तो उसका समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। વિજયભાઈ, પહેલો ક્વેશ્ચન મારે જ પૂછવો છે। આ તાડપત્ર પર લખવા માટે મુનિરાજ કઈ વસ્તુનો પ્રયોગ કરે છે? जी अरे सॉरी, ये इतना इम्पोर्टेंट चीज मैंने मेरे कवर नहीं किया। तुम्हारा खूब खूब आभार पारस भाई। ताड़पत्र, देखिए आज तक ऐसी बातें चलती है और जो मैं बताऊंगा उसका भी कोई आधारभूत प्रमाण नहीं है, लेकिन जो मुझे अपने विवेक से जो प्रतीत होता है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ताड़पत्र पे लिखने के लिए कोई आचार्य भगवान या मुनिराज ऐसे गिरे हुए पत्तों को एकत्रित नहीं करते होंगे, क्योंकि सर्व आरंभ परिग्रह के त्यागी मुनिराज, जिनको पानी और मिट्टी के सिवाय कुछ ग्रहण नहीं है, वैसे मुनिराजों को वो एक कांटा उठाना या तो उसको एकत्रित करना, वो ताड़पत्र को निकालना, चुनना, वो उतना विकल्प मात्र नहीं आएगा। तो वैसी स्थिति में आपको एक प्रश्न होगा, तो फिर इन ताड़पत्रों का लिपिबद्ध कैसे किए गए? तो वो उस समय के वो श्रावक गृहस्थ वर्ग को उतना विवेक था, वो उन आचार्य भगवान की प्रतिभा से बराबर वाकिफ थे, क्योंकि भले ही वनवासी मुनिराज वनों में रहते थे लेकिन उनको दिन में एक बार आहारचर्या के लिए नगरों में जाना पड़ता था, और वो सिर्फ आचार्य भगवान को नहीं पूरे संघ को जाना पड़ता था। उस समय उनको गृहस्थों का संसर्ग होता था, और तब वैसे समय पे वो गृहस्थ, वो विवेकी विद्वान गृहस्थ जन उनकी प्रतिभा और उनकी क्षमता से बराबर परिचित होते थे, क्योंकि ये चीज कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, ये पूर्ण जीवन पर्यंत की बात होती है। आज हमारे सामने 2 व्यक्तियों का परिचय यदि 1 घंटा 2 घंटा का भी परिचय हो तो हम उनकी प्रतिभा और उनकी क्षमता को समझ लेते हैं।
तो वो विवेकी श्रावक जन वो वैसे आचार्य वैसे मुनिराजों के सामने वो बने बनाए ताड़पत्र कि जिसमें वो योग्य तरीके से लिपिबद्ध हो सके, वैसे ताड़पत्र और सलीकाएं उनके सामने वो ज्ञापित करते होंगे, और फिर वो जब विकल्प अवस्था में वो आचार्य भगवान मुनिराज आते होंगे तब वो लिपिबद्ध करके और वैसा का वैसा पूरा ग्रंथ तैयार होने के बाद वो सुयोग्य हाथों में उसको अर्पण करते होंगे। क्योंकि यदि कोई बात ऐसी भी चलती है कि वो जंगल में छोड़ देते होंगे, लेकिन वैसा भी मुझे शक्य नहीं लग रहा है कि ऐसे कहीं कहीं जंगल में छोड़ देने से वो 415 गाथा, वो 18,000 सुख प्रमाण महापुराण, वो 357 सूत्र, वो ऐसे अकबंध कैसे मिलेंगे। तो पूर्ण ग्रंथ बन के वो किसी जिनालय में या किसी श्रावक के सुयोग्य हाथों में उसको वहां पर रखते होंगे, और तब जाके ये परंपरा इतनी सुदृढ़ चल रही है। और फिर उसके बाद में वो श्रावक गण, धर्मात्मा श्रावक लोग उसको बहुत अच्छे से संभालते होंगे, और वो जिनवाणी का इसी तरह से आज तक हमारे लिए ये उपलब्धि हो रही है। एनीथिंग एल्स? હવે બીજા કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો? यहाँ गुरुदेव के आहार कक्ष के आगे समोसर मंदिर के पीछे हमारा एक टेंट लगा हुआ है, वहां पर ताड़पत्र जिनवाणी विराजमान है। आप उसका दर्शन का आप अवश्य लाभ लीजिए, क्योंकि ये मौका बारी बारी मिलना मुश्किल है। कैसे ताड़पत्र होते थे, कैसे उसमें लिखा जाता था, उसकी सलीका और कैसे उसको कार्विंग किया हुआ है, वो सारा चीज बहुत अच्छे से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपकी जिज्ञासा को संतुष्ट कर सके। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप इसे तालपत्र की हिंदी में बोल रहा हूँ, इसे तालकप की पत्रों की कॉपियां मिल रही हैं काफी जगह पे जी, तो वो कैसे होती है? जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने बताया कि दादाजी अपने पोते से वचन लेते थे, और वो बाप से सवाया बेटा कि पिताजी ने तो एक ग्रंथ लिखा, लेकिन वो पुत्र ने 5 ग्रंथ लिख के 5 जगह जिनालयों में विराजमान किए, ज्ञान दान समझ के और ज्ञान दान के उद्देश्य से, और वो मुनिराजों को स्वाध्याय के लिए दिए। किसी मुनिराज को यदि टीका लिखना है तो उसके लिए वो दिया गया। इस तरह से वो बढ़ते 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 वो लाखों की संख्या में, क्योंकि ये कार्य 100 पीढ़ी से चल रहा है, एक एक पीढ़ी में यदि 5-5 पत्र भी लिखे गए तो इतने हजारों श्रावकों और कितनी संख्या हो जाएगी। उसमें से वो क्षीण भी हो जाते हैं, नष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन वो कार्य बढ़ते रहता है। तो जिस तरह से आज प्रत्येक जिनालय में ये समय सार जी 50 की संख्या में विराजमान होते हैं, वैसे वो प्रत्येक ताड़पत्र ग्रंथ वो जिनालयों में 5-5, 10-10 की संख्या में अभी भी विराजमान है। और वो खाली समय सार जी नहीं, सारे ग्रंथों के विषयों के बारे में समझना। अभी हमें दिखाया था कि जो हस्तप्रत लिपि है वो कागजों पर लिखी गई है, तो श्रावकों को ऐसा कैसे पता चलता था कि ग्रंथ इतना ही होगा, और उसमें स्याही तो कैसे पता चलता था कि कब मुनिराज को स्याही की जरूरत है, कब नहीं है? हस्तप्रत श्रावकों ने लिखे हैं, विद्वानों ने लिखे हैं, जो कागज पे लिखे गए हैं, और उन्होंने अपने मन से कहीं कुछ नहीं लिखा है। आप मोक्षमार्ग प्रकाशक जी की प्रस्तावना पढ़ेंगे, स्वयं मोक्षमार्ग प्रकाशक जी पढ़ेंगे, आप सर्वार सिद्धि जी पढ़ेंगे, आप समयसार नाटक पढ़ेंगे, तो उसके आगे वो प्रस्तावना होती है, तो उसमें वो सारी चीजें उसमें लिखी हुई होती है कि ये ग्रंथ कहाँ से प्राप्त हुआ, किस किस ग्रंथों के रेफरेंस से लिखा गया है। इसलिए मुनिराजों ने कहीं स्याही वगैरह का उपयोग करके नहीं लिखा है, वो बाद में वो पिछले 400 सालों के पीरियड में श्रावकों ने उसका लिपिबद्ध किया है। जय जिनेंद्र। जैसे हमारे गांव आदि में अभी भी जैसे कई जगह पांडुलिपियां थोड़ा नजदीक में पांडुलिपियां मिलती है, तो जैसे वो संरक्षित नहीं हो पा रही, तो क्या कर सकते? हाँ जी, बहुत अच्छा। मैंने जैसे बताया कि वो क्षेत्र के ताड़पत्र ग्रंथों का संरक्षण बहुत अच्छे से होता है।
वैसे गांव के ताड़पत्र जो ये जो पांडुलिपि जिसको कहते हैं कि जिसके पत्ते पीले पड़ गए हैं, पांडु कोई लिपि नहीं है, लेकिन जिसके पत्ते जो कागज पीले पड़ गए हैं, पीला मतलब पांडु, तो वो पांडुलिपि कही जाती है। तो वैसे ग्रंथों को हम उसको गाइड करते हैं, उसको बताते हैं, चाहे तो हम वहां के बताएंगे, उसको भी डिजिटलाइज करते हैं, उसको भी सुरक्षित करते हैं, ताकि भले ही 300 साल पुराना ग्रंथ हो, लेकिन वो आने वाले सालों तक वैसा का वैसा बना रहे और हमारी विरासत सुरक्षित रहे, वो हेतु से हम उसका भी कार्य करते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जो ताड़ जो एक वृक्ष होता है, उसके पत्ते जैसे ऊपर से गिरते थे उसी के ऊपर गिर जाते थे कि उनके ऊपर कुछ हाँ जी, तैयार किए जाते थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो ताड़ पत्र जब ऊपर से गिर जाता है ना, वो सूखा हुआ होता है। आप किसी भी नीम का भी पत्ता, किसी भी ये बरगद का पत्ता आप उठा के देख लेंगे, उसको सूखा हुआ पत्ता हाथ में लेते ही चूर चूर हो जाएगा। तो वैसा नहीं होता था। जैसे मैंने बताया, श्रावक वर्ग वो ऊपर से पत्र, पके हुए पत्रों को उतारते थे, जो एकदम सूखने से पहले उतार के लेते थे, और उसका एक प्रोसेस बनता था। वो प्रोसेस से उसको एकदम साइज में कट करके और वैसे बने बनाए ताड़पत्र मुनिराज को और आचार्य भगवान को देते होंगे, तब उसमें बहुत अच्छे से वो लिपिबद्ध किया जाता होगा। एनीथिंग एल्स? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे इससे ये बात पता चला कि इन विद्यार्थियों ने भी बहुत अच्छे से सुना है, अटेंड किया है और ग्रहण किया है। बहुत जी जी, जय जिनेन्द्र। पब्लिश हो चुके हैं वैसे जी, अभी तक जी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हमें वैसे भी ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, जैसे पदार्थ तो 9 होते हैं, लेकिन हमें अष्ट पदार्थ सारम एक ग्रंथ हमें वो मिला है, अभी तक हमारे परिचय में नहीं है। ऐसा आचार्य कुंद पद्मनंदी कुंद कुंद विरचित एकत्व स्थिति, ऐसा एक हमें ग्रंथ मिला है। आज हमें पता है कि 84 पहुड़ की रचना आचार्य भगवान ने की है, कुंद स्वामी ने। तो हमें उसमें से कुछ ऐसे गिनने जाए तो 5 परमागम और 10 भक्ति और 12 अनुपेक्षा, और इस तरह से वो अष्टपाहुड़ को दी 8 गिना जाए तो वैसा मिला के, और कुरल काव्य वो भी सिद्ध हुआ है श्रवण बेलगोला में कि आचार्य कुंद स्वामी है तिरुवल्लुवर। तो वैसा सब मिला के कुछ 14-15 ग्रंथ जो उपलब्ध है। तो उसमें एक एकत्व स्थिति भी ग्रंथ मिला है, लेकिन उसका अभी परिचय सिर्फ प्राप्त हुआ है, उसकी विषय वस्तु और उसका डिटेलिंग अभी कार्य बाकी है। वैसे ही मैंने बताया कि अष्ट पदार्थ सारम हमें एक ग्रंथ मिला है। हमें आज तक हमें श्रावक आचार मतलब वो गृहस्थ स्त्री पुरुष दोनों के संबंध में है, लेकिन एक श्राविका आचार भी एक ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ है कर्नाटक में, कि श्राविका को किस तरह से हमारे परिवार को कैसे चलाना चाहिए, किस तरह से रसोई संभालना चाहिए, किस तरह से बच्चों को संस्कारित करना चाहिए, ये सारा भी श्राविका आचार करके भी एक ग्रंथ मिला है। तो वैसे ग्रंथ और ये प्राप्त है जो जैसे आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी का हमें मिला है, उसका कार्य तो उसका अनुवाद का कार्य हो चुका है, और वैसे ही इन ग्रंथों का एक एक कार्य हम एक एक हाथ में लेंगे और उसको सुयोग्य तरीके से विद्वानों के सामने प्रमाणित करके फिर उसको प्रकाशित करने का उद्देश्य है। टिल डेट इट इज नॉट एस्टिमेटेड, क्योंकि वो ग्रंथ की साइज क्या है, उसके लिए कितना समय लगता है, उतना समय विद्वान कैसे दे पाएंगे, वो काफी चीज इन्वॉल्व है। तो अभी तक वो कोई एस्टिमेट नहीं हो पाया है, लेकिन वो कार्य अभी हमारे लक्ष्य में है और वो हमें करना है, एजेंडा में भी है। माइथिलेस, हाँ હું रिपीट करीશ। ये जो ताड़पत्र हैं, जी। इनमें
जैसे हम कागज पे लिखते हैं आगे और पीछे दोनों तरफ, वैसे ताड़पत्रों पे भी आगे पीछे दोनों तरफ लिखा जाता है क्या? हाँ जी, मैंने जैसे बताया कि इतने पतले 0.2 0.3 mm पतले ताड़पत्र ग्रंथ में दोनों साइड से लिपिबद्ध कार्विंग करके लिखा हुआ रहता है, दोनों पहलू पे। आप सोचिए, मैंने 2 लाख पत्रों को जब हैंडल किया है तब उसमें लिपिबद्ध करने में वो खोदा जाता है। एक लाइन भी यदि गलत हो गई तो वो इरेज नहीं कर सकते हैं। आप अपन अभी नोट पे जब लिखते हैं यदि एक अक्षर गलत लिख दिया तो हम उसको मिटा सकते हैं, लेकिन ताड़पत्रों में ये चीज शक्य नहीं है। जब तो हमें वो चीज, हमें वहां ये चीज सिद्ध होती है कि लिखने वाले को जिन वचनों के प्रति कितनी महिमा है, वो उनको कितनी जिम्मेदारी है और कितनी एकाग्रता से ये परंपरा को निभाया है कि ये 2 लाख पत्रों में हमने पाया है मुश्किल से 1-2 पत्र में कहीं चेक चाक कहीं मिली होगी, अन्यथा पूर्ण ग्रंथ संपूर्ण अक्षर शुद्ध मिलता है। ये कितना बड़ा अपना सौभाग्य है, आप ये भी हमें समझना चाहिए। हाँ बेटा, अच्छा, एक के बाद जैसे पुरानी भाषा में लिखा गया है ग्रंथ, तो इनको मतलब डिक्शनरी जैसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश से, तो उनसे ट्रांसलेट कैसे करते हैं? हाँ जी, देखिए मैंने जैसे बताया कि हर 50-100 साल में भाषाएं लिपियां बदली होती जाती थी, लेकिन वैसे वैसे विद्वान भी होते जाते थे, उसको मॉडर्नाइज करते जाते थे और तब जाके हमें इस तरह से ग्रंथ मिलते हैं। तो उसमें जो शब्द जो मिलते हैं वो शब्दों का भी पूरा शब्दकोश जो बना है वो वर्तमान के जो हमारे उपलब्ध जिनवाणी के अनुकूल बना है। और ये जिनवाणी कोई मनगढ़ंत नहीं है, वो उसी की परंपरा से, वो क्रम से उसको मॉडिफाई करते 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 सने ये रूप प्राप्त हुआ है। इसलिए उसका शब्दार्थ और वो शब्दकोश भी हमारे लिए उपलब्ध है और उसी के हिसाब से उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। हाँ जी, अंतिम प्रश्न जी, और है जी? हाँ जी, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। ये जो आप डिजिटलाइज करते हैं तो अगर हमें एक्सेस करना है वो तो हम कहाँ से कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, उसके लिए हमारे कमेटी की एक पॉलिसी है कि वो किसको दिया जाए, क्योंकि ऐसे योग्य व्यक्ति के हाथ में ही वो जाना चाहिए, क्योंकि वो पाने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है वो भी उनको, आपको यदि चाहिए तो आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं, आपके लिए आप उसको क्या यूज करने वाले हो, वो सारा चीज को एक प्रमाणित करके फिर वो कॉपी आपको मिल सकती है, जरूर मिल सकती है, लेकिन वो फ्रेम में रह के, क्योंकि कहीं भी किसी को भी कैसे भी दे देना वो हमारे लिए असाधना अविनय का कार्य होता है। इसलिए वैसे व्यक्ति को ही और वैसे विद्वान को ही, वो जिज्ञासु को ही वो कॉपियां दी जाती है जो उसके लिए योग्य हो। वो जो आप जिससे ताड़पत्र पे कार्विंग करते हैं उसका कोई फोटो या कुछ है? हाँ बेटा, फोटो भी है और हमारे वहां पर वहां पर आपको प्रैक्टिकल भी दिखाया जाएगा। आप आइए, आपको वहां कैसे ताड़पत्र होते थे, कैसे लिखा जाता था, वो सारा चीज वहां पर है, वो आपको कल देखने को मिल सकता है। जैसे जो हमारी ताड़पत्रों पे मूल भाषा हमारी ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि सुंदरी लिपि, तो इसमें भी और कोई ग्रंथ अवेलेबल है जो आपकी नॉलेज में हो तो भी बताइए। और जो सुंदरी लिपि में मुझे अभी एक मिला है श्री भूवलय ग्रंथ, श्री भूवलय जो अभी कर्नाटक का ही है, तो उस ग्रंथ को मतलब जब मैंने देखा तो देख के वाकई बहुत प्रसन्नता हुई कि वो सारा अंकों में लिपिबद्ध है, तो मैं उसी की स्टडी कर रही हूँ। अगर उसमें ही हमें और जानने को मिले तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतनी आप उत्सुकता से इस तरह से जिनवाणी का अवलोकन करते हैं, बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। लेकिन अभी पोन्नूर में
दो तरह के दो लिपियों के ग्रंथों को हमें अभी प्राप्त हो पाए हैं और वो दो विद्वान ही हमने अभी हमारे पास मिले हैं, क्योंकि जैन परंपरा में ग्रंथम लिपि और ये हले कन्नड़ लिपि वो दो लिपि प्राचीन ग्रंथों में अभी प्राप्त हो रही है। कहीं उड़ीसा में भी उड़िया लिपि, प्राचीन उड़िया में भी ग्रंथ लिखे गए हैं जो हमारे खंडगिरी, उदयगिरी वगैरह क्षेत्रों पे वहाँ भी ताड़पत्र जो विराजमान है वहाँ वो लिपि में है। और हो सकता है कर्नाटक में कहीं कहीं ब्राह्मी लिपि में भी ग्रंथ मिले हो, लेकिन अभी तक हमारी प्राप्ति में वो ग्रंथ नहीं आए हैं। और शिलालेखों में भी कहीं कहीं ब्राह्मी लिपि है, लेकिन जैन परंपरा में ये दो लिपियां अधिक चलती है। बौद्ध और अन्य मतियों में ब्राह्मी लिपि का ज्यादा चलन है। આ તાડપત્રનો માહિતી આપતો કાર્યક્રમ અહીં સમાપ્ત થાય છે. આના ક્વિઝના 2 રાઉન્ડ છે. પહેલા રાઉન્ડના જે 10 ક્વેશ્ચનની ક્વિઝ છે ઓલરેડી એપ પર એક્ટિવેટ થઈ ગઈ છે અને બીજા રાઉન્ડની ક્વિઝ છે કાલે રાતના 10 થી 12 ની વચ્ચે એક્ટિવેટ કરવામાં આવશે. પણ એના માટે જરૂરી છે કે સૌએ કાલે વિઝિટ કરવું અને તાડપત્ર અને એ જે પણ બાકીની ડિટેલ્સ છે ત્યાં ફિઝિકલ ફોર્મમાં એને ઓબ્ઝર્વ કરીને પછી જ એ કરશે. તો કાલે બીજો ક્વિઝનો રાઉન્ડ રાતના 10 થી 12 વચ્ચે કરવામાં આવશે. વિજયભાઈ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. બહુ જ સારો અને ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિષય હતો અને હું બધાને રિકમેન્ડ કરીશ કે કાલે આપણે જે એક્ઝિબિશનમાં તાડપત્ર પર તમને એકચ્યુઅલ તાડપત્ર જોવા મળશે અને કેવી રીતે એમાંથી લખાય છે તે પણ જોવા મળશે. ખાસ પોનુરથી આપણા માટે આ 2 કલાકનો અહીંયા પ્રોગ્રામનું આયોજન કર્યું હતું એ બદલ ખાસ પોતે મદ્રાસથી ટ્રાવેલ કરીને આવ્યા છે તે બદલ એકવાર ખાસ તમને ફરી ધન્યવાદ છે. થેન્ક યુ. આ સાથે અહીંયાનો કાર્યક્રમ પૂરો થાય છે. આવતીકાલે જેમ જાહેરાત કરી એમ અભિષેક અને પૂજાનો કાર્યક્રમ સવારે રહેશે. બોલે અનંત અનંત ઉપકારી સદગુરુ દેવનો જય. ધન્યવાદ.